کر رہا پھر زندگی میں ہم پلٹ کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ اشرا نہیں ملے گا. میرے دوستوں اس کے بعد شروع ہونے والا کیا ہے؟ اس کے بعد کے جو 10 دن کیا ہے؟ مغفرت کے. اللہ مغفرت کے 10 دن شروع ہونے والے ان قریب. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کیا ہم نے رحمت کے اشرے کا صحیح حق ادا کر دیا؟ ایک آدمی سوچے میرے دوستوں، آدمی ہمارے صوفیہ اکرام فرماتے رات کو تم اپنے بستر پر جاؤ تو ایک مرتبہ بیٹھ کر 2 منٹ زیادہ 2 منٹ سوچ لیا کرو کہ آج میں نے جو کام کیا ہے، کتنے بندوں کو میں نے تکلیف دی، کتنے لوگوں کو میں نے چماٹا مارا، کتنے لوگوں کی زمینیں میں نے ہڑپ کی، کتنے لوگوں کو میں نے جو ہے تکلیف دی. ایک مرتبہ جائزہ لو. اگر تم نے کسی کو تکلیف دی تو ان کو معافی چاہو. اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو استغفار کرو. اللہ سے مانگو کہ اللہ اے اللہ میں نے تو جو ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا تھا میرا دین ایسا گزرے گا، لیکن اللہ میرا دین تو اللہ اتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے میرا دین گزرا. اسی وجہ سے حدیث میں اللہم اجعلنی، حضور کی دعاؤں میں اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے سریرتی خیرا من علانیہ، اے اللہ میرا جو اندرون ہے، میرا باہر میں بڑا جبہ ڈال دیا، میں لمبی ٹوپی لگا دی، میں نے بڑی داڑھی چھوڑ دی. اللہ لوگ سمجھ رہے کہ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار، مجھ سے زیادہ اعلیٰ اور الفا کوئی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ، اے اللہ میرا اندرون بہت بڑا شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اے اللہ میرا اندرون کو میرے ظاہر سے بھی بہتر بنا. میرا اوپر دکھنے والا ہے نا شوئنگ، جس کو بولتے لوگ شوئنگ بڑا اچھا ہے میرے دوستو، اے اللہ لوگ مجھے دیکھ کر سارے لوگ سمجھ رہے بہت متقی پرہیزگار. میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے میرے اندرون کو میرے باہر سے بھی زیادہ بہتر بنا دے. وجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرا جب اندرون اچھا بن جائے تو میرا اوپر بھی اچھا بنا، ظاہر بھی اچھا بنا. ورنہ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہم ظاہر اچھا بناتے پھریں گے لوگوں کے سامنے عطر وطر لگا کے سارے سے، لیکن اندرون ہمارا بگڑا ہوا ہوگا. اللہ ہزاروں مرتبہ معاف فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں رمضان کا مبارک مہینہ مانگنے کے لیے آیا، تڑپنے کے لیے آیا، اللہ کے سامنے رونے کے لیے آیا. میرے بندے رو لے جتنا رونا چاہتا ہے، کیا ہم تجھے دینے کے لیے تیار. ہر آن، ہر منٹ، ہر لحظہ تیرا قیمتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں جو مانگنا چاہتا ہے آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ایک شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہیں نا امید اقبال اس کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے. ساتھی اللہ نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، معمولی صلاحیتیں نہیں ہیں. فرمایا الانسان معادن کالمعادن الذهب والفضہ. فرمایا انسان کیا ہے؟ انسان خزانہ ہے. کیا خزانہ؟ دوستو انسان کو دیکھے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا خزانہ ہے. فرمایا کہ الانسان معادن کالمعادن الذهب والفضہ. فرمایا سونے کا خزانہ، چاندی کا خزانہ، لوہے کا خزانہ جیسا نکلتا ہے زمین سے نکالتے ہیں، اسی طریقے سے انسان خزانہ ہے. کیا خزانہ ہے؟ اس کے اندر سخاوت کا خزانہ ہے، اس کے اندر تواضع کا خزانہ ہے، اس کے اندر دلیری کا خزانہ ہے، اس کے اندر عفو و درگزر کا خزانہ ہے. یہ تمام اس کے خزانے ہیں. یہ خزانے کو لے کر چل رہا ہے. اللہ نے بڑی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں اور اللہ نے بہت عمدہ پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈالا، اشرف المخلوقات ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یہ مہینہ ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے آیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس مہینے کو بھی اور مہینوں کی طرح تو ضائع نہیں کر رہے، بیکار باتیں نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. فرمایا بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ صرف ان کے بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہوتی. کیا مانا؟ ادھر روزہ رکھا، ادھر جا کر غیبت کی،
इधर रोजा रखा, उधर जाकर लड़ाया लगाया, इधर रोजा रखा, उधर जाकर तू मैं की बातें की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, वो रोजा क्या होगा? वो रोजा तो मेरे दोस्तों रोजा नहीं, वो तो खिलवाड़ बन गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतों को लाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी, दो औरतें निढाल हो गई हैं, रोजा रखी थी और निढाल हो गई, परेशान हाल है हम सब, तो मैं वो दो औरतों को मेरे पास लाओ। उन्होंने फरमाया, देखा तो दोनों करीब आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, क्या हुआ, तुम्हारा रोजा क्यों इतना निढाल हो गया? फरमाया, मालूम नहीं, तुम सुबह उठी तो क्या की? बस हमने रोजा रखा, फिर हम बाजू घर गए, हम जो है जाकर कुछ चेयर उधर गपशप लगाया, फिर उसके बाजू घर गए, कुछ गपशप लगाया, ऐसे ही करके आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनसे खै कराओ। खै कराई गई तो उसमें से बारीक बारीक गोश्त के टुकड़े निकले। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जो आजू बाजू के जो घरों में गई थी, क्या बात थी? कुछ ऐसी बातें हुई, यानी गीबत की, और उस गीबत का नतीजा यह हुआ, हुजूर ने जब प्याला मंगाकर उसमें खै करवाया तो उसके अंदर से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े निकले। फरमाया, कुरान करीम के अंदर है, एक आदमी दूसरे आदमी की गीबत करना, जैसे तुम्हारे मुर्दार भाई के गोश्त को खाना जैसे तुम पसंद नहीं करोगे, इसी तरीके से याद रख लो कि किसी आदमी की गीबत करना, गीबत का नतीजा है कि छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े उस बर्तन में गिर रहे, उस प्याले में गिर रहे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हमारा रोजा वैसा नहीं, हमारा रोजा तो वो हो कि हमारे रोजे के जरिए से हमारी आंख का इस्तेमाल सही हो, हमारे जबान का इस्तेमाल सही हो, हमारे हाथ का इस्तेमाल सही हो, हमारे पैर का इस्तेमाल सही हो। इसी वजह से फरमाया, अगर कोई आदमी देख लेकर है कि भाई हमसे लड़ना चाहता है, हमसे बात में उलझना चाहता है, यही मौका है रमजान का, अब आ गया हमारे ऊपर को, क्या कहा गया? फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अच्छी शरीयत है, अल्लाह कुर्बान जाइए हमारी शरीयत पर। फरमाया, इन्नी अना साइमुन, फरमाया ये कह दो उसे कि भाई मैं तुझसे लड़ने वाला भिड़ने वाला नहीं, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, मैं लड़ना मरना तेरे से करने वाला नहीं, तू जा सकता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हमारे रमजान से गैर मुतासिर हुए थे, अल्लाह हमें माफ फरमाए, आज हमने हमारे रमजान को सत्यानाश करने का जरिया मुसलमान बन गए। यहूद और नसारा जब भी सफर करते थे, जाते हुए सोना चांदी से भरे हुए थैले लाकर सहाबा के घरों में रखकर जाते और कहते कि देखो ये हम तुम्हारे घर में रख के जा रहे हैं, ऊंटों का जमाना है, दूर दराज सफर है, हो सकता है हम वापस हो के ना हो, लेकिन ये हमारा सोना चांदी के जो जेवरात हैं ये हमारे वारिसीन तक पहुंचाते। सहाबा फरमाते, भाई तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे अकारीब हैं, तुम्हारे चाहने वाले हैं, सारे तुम्हारे पुप्पू, तुम्हारा मामा, तुम्हारे सारे लोग हैं, उनके घरों में क्यों नहीं रखते? कहते वो यहूद और नसारा कहते थे, हमें उनके घर में रखना पसंद है, इसलिए कि हमारा जो हक तुम्हारे पास रखे जा रहे वो हमारे वारिसीन तक पहुंचेगा, इससे हमारा भरोसा नहीं। हाँ, हमें तुम्हारे घरों में रखते ही तो हमारा माल जरूर हमारे वारिसीन तक पहुंचेगा। ये कैसे? तुम्हें इतना माल लगा हमारे घरों में रखे जा रहे हो, तुम्हें यकीन, तुम्हें जो है कोई गुमान नहीं होता, कोई ख्याल नहीं होता कि हम तुम्हारे माल में से निकाल कर हड़प कर लेंगे, खा लेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, क्या जुमला इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों, लोगों ने कहा कि हमने तुम्हारे रमजान को देखा है, तुम्हारे रमजान को जो दिन में अल्लाह ने जिन चीजों को तुम्हारे ऊपर हलाल किया है, उन सारी चीजों को तुम अपने ऊपर हराम करार देते हो। आदमी गुस्ल कर रहा, पानी नहा रहा, पानी नहाते हुए सर पर से पानी डाल रहा, तो दोस्तों चाहता तो दरवाजा बंद है, एक गिलास पानी पी ले, उसे जरूरत नहीं होती, नहीं पीगा, क्यों? मेरा रोजा है। मेरे दोस्तों, वो यहूद और नसारा कहते थे कि देखो हमने तुम्हारे रमजान को देखा है, अल्लाह के हलाल करदा चीजों को तुम अपने ऊपर हराम करार देते हो। फिर जाए कि हमारे मालों को तुम हाथ क्या लगाओगे, बल्कि आंख के किनारे से, गोटे चश्म से भी तुम हमारे मालों की तरफ नजर नहीं करोगे। अल्लाह अकबर, कितना गुमान, कितना ख्याल हमारे रोजों के जरिए से गैरों ने लिया था। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, आज ये गैर मुसलमान को याद दिलाता है, अरे भाई रमजान है, हमने बहुत सारे मुसलमान को देखा है वो रोजा रखते हैं और आप खाते पीते फिर रहे,
मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, दिल के बबूल जल उठे, दिल के बबूल जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। इसको कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमने रमजान की सही इज्जत नहीं, हमने रमजान को रमजान की तरह से नहीं गुजारा, इसी की नहूसत है खुदावंद कुदूस। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जिसके 11 महीने अच्छे होना हो, उसको चाहिए कि अपना रमजान सही कर ले, अपना रमजान अल्लाह जैसी चाहते हैं इस तरीके से कर ले। मेरे दोस्तों, जो भी पैसा खुदा ने दिया बहाएं, ये महीना बहाने का, ये महीना लोगों को देने का। दो फरिश्तों को अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया, क्या दुआ करते हैं रोजाना, उनका काम है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करता है, ऐ अल्लाह तो उसको निअमल बदल अता फरमा। और एक फरिश्ता रोजाना दुआ करता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो तेरे रास्ते में बावजूद ताकत के कुदरत के देने से रोके रखता है, ऐ अल्लाह तो उसके माल को तलब फरमा, खत्म फरमा। मेरे दोस्तों, इफ्तार में लोगों पर खर्च करो, पानी पिलाना, मेरे दोस्तों खाने पीने की चीजें देना, फरमाया उससे क्या मिलेगा? फरमाया अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, सहाबा माल आता था, परेशान हो जाते थे, अल्लाह माल इतना कैसे आ गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है? तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु घर को तशरीफ लाए, शाम हुई, घर को तशरीफ लाए। बीवी ने कहा जी दस्तरखान बिछा दूं खाने के लिए? कहा कि नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है, क्यों इतना मुंह सुखड़ा हुआ है? कि अल्लाह के नबी तो नाराज नहीं हुए? कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी नाराज नहीं, फिर तो आप क्यों खाना नहीं खा रहे? कहा कि क्या बताऊं मैं, ये आज के जो तिजारत है, उस तिजारत में मेरा 4 लाख का नफा हुआ, अब ये 4 लाख रुपये नफा मेरे पास रखकर मैं रात कैसे गुजारूं? और मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, बीवी बड़ी होशियार और चालाक, मेरे दोस्तों, और उन्होंने कहा अच्छा इतनी बात है, आप खाना खा लो, थोड़ी देर में मैं खुद जो है इसकी बंदोबस्त करती हूँ। यहां तक कि पूरे गुरबा, मसाकीन, यतीमों की फहरिस्त मेरे दोस्तों एक बाकी को भेजिए, पूरे मंगा ली। कहा कि देखो तुम्हारे खाने खाने के अंदर हमने बंदोबस्त कर दिया, ये जो है मदीने के गुरबा, यतीम, बेवा, इन सारी की फहरिस्त से हम इनके माल को जो है इनमें तकसीम कर देंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, वो सहाबी के दिल में यह डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये माल के खत्म होने से पहले कहीं मेरी मौत आ जाए और अल्लाह के सामने मुझे खड़ा कर दे, ऐ तलहा क्या तू मेरे पास आया है? तुझे मालूम नहीं है कि तेरे घर के अंदर कितना माल जमा करके आया, मेरी मौत पहले आएगी या माल पहले बटेगा? सहाबा को इतनी ज्यादा फिक्र थी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। मेरे दोस्तों, ये माल हमारा नहीं, मेरे दोस्तों ये माल हमारा नहीं। कुरान करीम के अंदर उठा कर देखो, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत के एवज में हमारे जानों को, हमारे मालों को खरीद दिया। ये जान किसकी है? अल्लाह की। ये माल किसका है? अल्लाह का। अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह कहते कि मेरे बंदे दे। दोस्तों हदीस के अंदर आता है, जब कोई बंदा सदका देता है, वो आदमी जो सदका लेने वाला आया है उससे पहले अल्लाह लेते हैं। अल्लाह अकबर। हमें पूरा जिस्म दिया, जुस्सा दिया, मेरे दोस्तों हाथ, पैर, आंख, दिमाग, दिल, सारी चीजें दी, हालांकि पैदा होते हुए कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया तो कोई चीज जानते नहीं थे, हमें इतनी सारी चीजें दी है तुम्हें। अब बंदा देता है, बंदे के हिसाब में उसको जमा करते हैं, मेरे बंदे तूने सदका किया, तेरे हाथ पैर हरकत में आए, तूने ही अपने दिल से दिया, अल्लाह उसके हिसाब लेकर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, क्या अच्छा दिन है, क्या मुबारक दिन है। मेरे दोस्तों रमजान का महीना, दुआओं का महीना, रोजाना रोजगार की ये दुआ जरूर कबूल होती। आदमी अल्लाह के सामने मांगे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जिसके आंख से 2 कतरे आंसू निकलते हैं, आंसू क्या निकलते हैं बल्कि जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। मन बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जो आदमी अपनी आंखों से 2 आंसू निकालता है, 2 आंखों से आंसू क्या निकलते हैं? जहन्नम की आग को बुझा देते हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी का जहन्नम के अंदर जाना ऐसा ही नामुमकिन है जिस तरीके से दूध भैंस के जो थनों से निकलने के बाद फिर थनों में जाना। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने मांग ले। मेरे दोस्तों, रमजान का रोजा रखता है, मेरे दोस्तों रोजा बाकायदे के साथ रखे। फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, अल्लाह का हुक्म है। देखो रमजानुल मुबारक का महीना आया तो रोजा रखो। मेरे दोस्तों, इसमें कोई सेहतमंद आदमी के लिए कोई छूट नहीं। मेरे दोस्तों, आदमी खाता है पीता है सब। मेरे दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बताया होगा, आप मार्केटों में जाकर देखो, बड़े बड़े मार्केटों में जाकर देखो। मेरे दोस्तों, एक साहब से हम मुलाकात के लिए गए तो वो साहब जो है 1 बजे अपना टिफिन का डिब्बा खोलकर खा रहे। पूछा कि सही माशाअल्लाह बड़े वक्त पर आप खाना खा रहे। कहा कि हजरत ये खाना नहीं है, ये नाश्ता है। ये नाश्ता है 1 बजे दोपहर के। हाँ क्यों? इसीलिए कि सुबह से हमारे पास लारियां आती हैं और माल उतरता रहता है। उन मालों का सही हिसाब देखना है, कोसा माल आया, कोसा किसे देना है, इनमें पड़े हुए हमें अपना नाश्ता भी याद नहीं। अरे 1 बजे आदमी चंद कौड़ियों के लिए, चंद पैसों के लिए अपने नाश्ते को आगे पीछे करता है। वो अल्लाह जो हमें इतना बड़ा गुस्सा दिया, इतना बड़ा दिलो दमाग दिया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े रौदों को अल्लाह ने फाइज किया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाई, अल्लाह का भी कोई शुक्रिया बनता है कि नहीं बनता? अल्लाह के सामने कोई कहने का, कोई मांगने का, कोई मेरे दोस्तों अल्लाह के सामने रोने का कोई भी तो वक्त है कि नहीं है? मेरे दोस्तों, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान के अंदर सही रमजान के जितने समरात हैं अल्लाह ताला वो तमाम के तमाम हमारे लिए मुकद्दर फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।